افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کے باوجود افغان فورسز کے خلاف کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ہونے والے معاہدے سے قبل جو 7 روزہ عارضی جنگ بندی کی گئی تھی اس کا دورانیہ اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا افغان فورسز کے خلاف اپنی معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ ہونے والی عارضی جنگ بندی کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز نہیں ہو جاتا۔ تو ادھر امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تاریخی امن معاہدہ ہو چکا ہے، تاہم لگتا ہے کہ امن معاہدے کے باوجود عدم اعتماد کی کیفیت برقرار ہے۔ دوحہ میں 29 فروری کو طے پائے معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی افغانستان کے صدر اشرف غنی جنگ بندی کی اہم شرط سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، تو وہیں دوسری جانب افغان طالبان نے قیدیوں کی رہائی تک بین الافغان مذاکرات شروع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغانستان میں 18 سالہ طویل جنگ کے خاتمے کے لیے 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ ابھی بھی عدم اعتماد کے بادل چھٹے نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں یقین کا فقدان ہے اور پیچ پھنسا ہوا ہے۔ چونکہ اس تاریخی معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی افغانستان کے صدر اشرف غنی جنگ بندی کی اہم شرط سے پیچھے ہٹ گئے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے 5000 قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ خالصتاً ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ اشرف غنی نے کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ مذاکرات کی پیشگی شرط نہیں بن سکتا۔ البتہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ انٹر افغان مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اگلے 9 دن میں مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی جائے گی۔ افغان صدر نے کہا کہ امریکہ قیدیوں کی رہائی میں مدد فراہم کر رہا ہے، جبکہ قیدیوں کی رہائی پر فیصلے کا اختیار افغان حکومت کا ہے۔ اشرف غنی نے کہا کہ انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا اور امن معاہدے سے متعلق حالیہ پیش رفت پر مبارکباد دی ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے افغان قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور امن عمل کے اگلے مرحلے کے لیے افغانستان کی صلاحیتوں کو سراہا۔ افغان میڈیا کے مطابق صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کا نہیں کہا اور نہ ہی ہم نے ان قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن معاہدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ معاونت کرے گا۔ افغان صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ کسی بھی فیصلے پر ملکی سطح پر اتفاق کا ہونا ضروری ہے اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ موجودہ حالات میں درست نہیں ہے۔ دوسری جانب طالبان کے مذاکراتی ٹیم میں شامل اہم رہنما محمد عباس استنگزائی نے امن معاہدے کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ نے انہیں 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عباس کے مطابق قیدیوں کی رہائی کے بعد 10 مارچ کو بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اگر قیدی رہا نہ کیے گئے تو بین الافغان مذاکرات بھی تاخیر کا شکار ہوں گے۔ واضح ہے کہ 29 فروری طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں ہوئے امن معاہدے کے تحت امریکہ کو آئندہ 14 ماہ میں افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کرنا ہے اور اس دوران طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات ہوں گے۔ اس معاہدے کے تحت افغان حکومت کی قید میں موجود 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنا ہے، جبکہ طالبان بھی اپنی قید میں موجود لگ بھگ 1000 افغان اہلکاروں کو رہا کرنے کے پابند ہیں۔ معاہدے کی روح سے طالبان کو یہ ضمانت دینی ہے کہ افغان سرزمین القاعدہ سمیت دہشت گرد تنظیموں کے زیر استعمال نہیں آنے دیں گے۔ امن معاہدے کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ بہت جلد افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانا شروع کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان لیڈروں سے ملاقات کرنے کی بھی بات کہی تھی، تاہم امریکی صدر نے خبردار بھی کیا تھا کہ اگر معاہدے میں بری چیزیں ہوئیں تو ہم اتنی بڑی فوج واپس افغانستان لے کر جائیں گے جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे सियासी मुफाहमत की कामयाब कोशिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। तुर्की ने शाम में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड के तहत सुबह इदलिब में ड्रोन हमले किए हैं। तुर्की के ड्रोन हमलों में 19 शामी फौजी हलाक हो गए। शामी हालात पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक तुर्क हमले में एक फौजी अड्डे और एक फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद शाम और तुर्की के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। तुर्की का शाम में ऑपरेशन, इदलिब में तुर्की के ड्रोन हमले, तुर्क हमले में 19 शामी फौजी हलाक, शाम और तुर्की में कशीदगी। एक ऐसे वक्त जब शाम और तुर्की के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है, तुर्की ने शाम के सूबा इदलिब में शामी फौज के एक काफिले और एक फौजी छावनी को निशाना बनाया, जिसमें बशर अल असद की फौज के 19 फौजी हलाक हो गए। इस हमले में जबल जाविया में फौजी काफिले को निशाना बनाया गया, जबकि मारत अल नोमान में फौजी अड्डे पर हमला हुआ। दोनों मकामात पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। 1 मार्च को तुर्की ने शाम के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया था, जबकि शाम के अहम इत्तेहादी रूस ने तुर्की को खबरदार किया है कि वो शाम के फिजाई हदूद में तुर्की के फौजी तैयारों की हिफाजत की जमानत नहीं दे सकता। गुज़िश्ता हफ्ते इदलिब में शामी फ़ज़ाई हमले में तुर्की के 33 फौजी हलाक हो गए थे और इस हमले के बाद से ही इदलिब में कशीदगी में इजाफा हुआ है। इन वाक़यात के पेश नज़र तुर्की, शाम और इसके इत्तेहादी रूस के दरमियान जंग के खदशात बढ़ गए हैं। शाम में गुज़िश्ता कई बरस से जारी खाना जंगी के नतीजे में कई इलाके बागियों के कब्जे में आ गए थे, जिसमें से सूबा इदलिब अब भी बागियों के कंट्रोल में है। उधर शाम ने तुर्की के 3 ड्रोन तैयारों को मार गिराने का दावा किया है। शाम के सरकारी टीवी ने शुमाल मगरबी इलाके में फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को दुश्मन का जहाज माना जाएगा, जिसे फौज को मार गिराने का हुक्म दिया गया है। रूस की हिमायत याफ्ता शामी हुकूमत इदलिब को तुर्की की हिमायत याफ्ता बागियों और जिहादियों से वापस लेने की कोशिश में है। शाम में गुज़िश्ता कई बरस से जारी खाना जंगी के नतीजे में कई इलाके बागियों के कब्जे में आ गए थे, जिसमें से सूबा इदलिब अब भी बागियों के कंट्रोल में है, जबकि दीगर इलाकों पर शामी फौज ने रूस की मदद से अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। रूस के साथ सन 2018 में तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत तुर्की ने इदलिब के इलाकों में निगरानी की गरज से 12 फौजी चौकियां कायम की थीं। दूसरी जानिब इदलिब में शामी फौज की कार्रवाई के सबब लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और वो सब तुर्की की सरहद पर जमा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कम से कम 13,000 तारिक वतन तुर्की की सरहद पर पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि इनमें ज्यादातर तादाद अफगान तारिकीन वतन की है। तुर्की का कहना है कि इसके पास पहले ही से बेघर होने वाले कई लाख अफराद पनाह ले चुके हैं और वो मजीद पनाह गज़ीनों को लेने से कासिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि तुर्की और रूस की शाम में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जंगी जराइम के जुमरे में आ सकती हैं। यह रिपोर्ट पिछले साल जुलाई से रवां साल फरवरी तक के दौरानिये पर मुरतब की गई है। रिपोर्ट में कई ऐसी कार्रवाइयों की निशानदही की गई है जिनमें रूसी और तुर्क फजाई और जमीनी कार्रवाइयों के नतीजे में शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। यह रिपोर्ट एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब शुमाल मगरबी शामी सूबे इदलिब में कार्रवाई पर अनकरा और मास्को में कशीदगी पाई जाती है। तुर्की यूनान सरहद पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तारिकीन वतन ने तुर्की से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस दौरान अश्क आवर गोले दागे ताकि तारिकीन वतन को यूनान दाखिले से रोका जा सके। वाज़ेह है कि शाम में लड़ाई की वजह से हजारों की तादाद में मुहाजिरीन तुर्की की सरहद पर जमा हैं।
वहीं जर्मनी ने यूनान में तारिकीन वतन के मसले को हुकूमत के लिए एक चैलेंज बताया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के तर्जुमान ने स्टीफन सेब्रत का कहना है कि तारिकीन वतन मामले पर यूनान सरहद की सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है। Verstehen, dass die griechische Republik durch das, was an ihren Landgrenzen und auf ihrer Seegrenze im Moment ausgelöst wurde von türkischer Seite, in eine sehr schwierige Situation geraten ist. Die Bundeskanzlerin hat das Herrn Mitsotakis auch ausgedrückt in dem Telefongespräch. Und nun müssen Wege gefunden werden. Und diese Wege können nur Wege des Gesprächs sein, um die Lage wieder zu stabilisieren. Und nur das wird auch den betroffenen Menschen helfen. चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की। चीन से फैले मोहलिक वायरस कोरोना से दुनिया के 60 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 90,000 से जायद है। चीन के बाद दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में फैलने वाले कोरोना वायरस से हलाकतें 3000 से तजावुज कर गई हैं। चीन में इस मूजी वायरस से मजीद 42 अमवात की तस्दीक हुई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोविड-19 से मजीद 42 अमवात और 202 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा जनूबी कोरिया में भी 4 अफराद हलाक और 495 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीन में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2912 हो गई है, जबकि दुनिया के दिगर ममालिक में होने वाली अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। आलमी तौर पर अब तक कोरोना वायरस के 90,000 केसेस सामने आए हैं और चीन से बाहर ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इटली में हुक्काम ने कोरोना वायरस से अब तक 34 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1700 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से जनूबी कोरिया में हलाकतें 26 हो गई हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 4212 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 2 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिकी शहरों में सैन डियागो और सैन फ्रांसिस्को में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो कंपनी में आने वाले मुलाकातियों के साथ हाथ न मिलाएं। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में भी एक हलाकत की तस्दीक हुई है। फ्रांस में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 130 हो गई है। बरतानिया में कोरोना वायरस के 36 केसेस की तस्दीक के बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तिब्बी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। चेक रिपब्लिक, स्कॉटलैंड और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म कोविड-19 के अक़वाम आलम में फैलाव के खतरे को शदीद तरीन करार दिया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडेनोम ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 का इटली से दूसरे ममालिक की जानिब मुंतकिल होना इंतहाई परेशानी की बात है और अब कई दूसरे ममालिक को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। इन्होंने मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर ईरान में मोहलिक कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके बायस अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ईरान में कोरोना वायरस से सुप्रीम लीडर खामनई के मुशीर समेत मजीद 12 अफराद हलाक हो गए हैं। अब तक हलाकतों की तादाद 65 से तजावुज कर गई है, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 978 हो गई है। इसके अलावा मुतादिद मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना वायरस के फैलने से खौफ और दहशत का माहौल है। ईरान में कोरोना वायरस नहीं थम रहा है। मोहलिक कोरोना वायरस से मजीद हलाकतें हुई हैं। बताया जाता है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें तेहरान में हुई हैं। ईरानी महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस से मजीद 385 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद भी 1000 के करीब पहुँच गई है। ईरान में कई आला हुकूमती अहलकार भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सभी अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी वसाइल से लैस कर दिया गया है। ईरानी वजारत सेहत ने मुल्क की सभी मेडिकल यूनिवर्सिटियों के नाम एक सर्कुलर जारी करके ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से जंगी पैमाने पर निपटने की जरूरत है। ईरान में हालात इतने खराब हैं कि जुमे के रोज भी तमाम बड़े इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। दारुल हुकूमत तेहरान में स्कूल और सिनेमा घर तो 2 हफ्तों से बंद ही है। हुक्काम का कहना है कि मशहद में भी कोरोना से मुतासरा अफराद की तस्दीक हुई है। पहली बार मरकजी सूबे में 44 केसेस सामने आए हैं।
हुकाम ने ईरानी अवाम से अपील की है कि गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें और एहतियात बरतें। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीनी तिब्बी माहिरीन का आला सतही वफ्द भी तेहरान पहुंच गया है। चीन की जानिब से ईरान को तिब्बी सामान की पहली खेप भी फराहम कर दी गई है, जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स और मास्क भी शामिल है। दूसरी जानिब ईरान अपने हमसाया ममालिक बशमुल अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान और पाकिस्तान में दर्जनों केसेस का बायस भी बना है। पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए सेहत जफर मिर्जा ने मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 2 केसेस की मौजूदगी की तस्दीक की है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4 हो गई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद भी बंद कर दी गई है। इराक में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और तमाम एहतियाती तदाबीर की जा रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और पीर के रोज पहले पॉजिटिव केस की तस्दीक हो गई है। इंडोनेशियाई सदर ने हुक्काम को खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत दी है। हकीकत यह है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा और आलमी मसला बन चुका है। सऊदी अरब ने पहले ही उम्रे के लिए वीजा पर आर्जी रोक लगा दी है। मशरिक़ वुस्ता और मुतादिद खलीजी मुल्कों में कोरोना वायरस की वजह से खौफ और दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली भी पहुंच गया है। दिल्ली में इस वायरस के एक मरीज की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत ने इस बात की जानकारी दी है। ताहम वजारत ने यह भी बताया कि दोनों की हालत बेहतर है। वजारत सेहत ने यह भी जानकारी दी है कि तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत का कहना है कि जो मरीज दिल्ली में है वो इटली से आ रहा था, जबकि तेलंगाना का मरीज दुबई से। दोनों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। अभी तक जो सैंपल्स हमारी लेबॉरेटरीज में सारे मिला के क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए हैं, उनमें 3,217 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जैसा अभी बताया कि 3 पहले केसेस हुए और 2 पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं, और 23 हमारे पास अंडर टेस्टिंग है, यानी जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर इराक से है, जहां सियासी उथल पुथल जारी है। इराक के नए वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अलावी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। मोहम्मद अलावी ने अपनी मुजव्वजा काबीना की मंजूरी के लिए पार्लियामान का इजलास मुलतवी कर दिए जाने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। इराक के नए वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अलावी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। मोहम्मद अलावी ने मुजव्वजा काबीना की मंजूरी के लिए पार्लियामान का इजलास मुलतवी कर दिए जाने के बाद अपना नाम वापस लेने का फैसला किया। नामजद वजीर आजम ने उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कहा कि बाज़ सियासतदान मेरी राह में रोड़े अटका रहे थे। मोहम्मद अलावी ने इराकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मैं मुराआत देने पर रजामंद हो जाता तो मैं इस वक्त वजीर आजम होता, लेकिन मैंने मुल्क को मुमकिना परेशानियों से बचाने और मौजूदा बहरान को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। ताहम बातचीत की राह में मुतअद्दिद रुकावटें हायल हो गईं। अलावी की तरफ से वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ से दस्तबरदार हो जाने का ऐलान उस वक्त किया गया जब उनकी काबीना की तश्कील के लिए पार्लियामेंट का मुकम्मल इजलास मुनक़िद करने की 2 कोशिशें नाकाम हो गईं। 1 मार्च को हुई मीटिंग में पार्लियामेंट के 329 अराकीन में से सिर्फ 108 अराकीन ही शरीक हो सके। मुल्की सदर बरहाम सालेह ने साबिक वज़ीर मवासिलात मोहम्मद अलावी को ओहदे के लिए उस वक्त नामजद किया था जब एक दूसरे के मुखालिफ सियासी जमातों के अराकीन पार्लियामान आदिल अब्दुल मेहदी के जानशी पर मुत्तफिक होने में नाकाम हो गए थे। अलावी को हुकूमत साजी के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था और ये तवक्को की जा रही थी कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएंगे। सदर बरहाम सालेह आइंदा 15 दिनों के अंदर वज़ीर आज़म के नए उम्मीदवार के इंतखाब के हवाले से बातचीत शुरू कर सकते हैं। वाज़ेह है कि आदिल अब्दुल मेहदी ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद गुज़िश्ता बरस दिसंबर में वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। हालांकि आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के बाद भी इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुल्क के कई शहरों में गुज़िश्ता कई महीनों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरीन ने मोहम्मद अलावी की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था। मुजाहरीन का कहना था कि अलावी का इंतखाब अवाम ने नहीं बल्कि सियासी अशराफिया ने किया है।
عراق میں ہو رہے حکومت مخالف احتجاج میں اب تک کم از کم 550 افراد ہلاک جبکہ 30,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر ملیشیا کو نیا وزیراعظم مل گیا ہے۔ کئی دنوں کی سیاسی اتھل پتل کے بعد محی الدین یاسین ملک کے نئے وزیراعظم بن گئے ہیں۔ اس طرح تیسری مرتبہ مہاتر محمد کے وزیراعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ محی الدین یاسین ملیشیا کے نئے وزیراعظم بن گئے ہیں۔ ملیشیا کے بادشاہ نے محی الدین یاسین کو ملک کا نیا وزیراعظم بنانے کی منظوری دی، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ محی الدین یاسین 9 مارچ کو پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ محی الدین یاسین کو سابق وزیراعظم نجیب رزاق کی پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ محی الدین یاسین سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ انہیں سابقہ الیکشن میں ہارنے والی نجیب رزاق کی سیاسی جماعت یونائٹڈ ملائی نیشنل پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ بیرسٹاؤ پارٹی کی صدارت بھی اس وقت محی الدین یاسین کے پاس ہے۔ مہاتیر محمد نے محی الدین یاسین کے وزیر اعظم بننے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کیونکہ انہیں 222 رکنی پارلیمنٹ کے 114 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ہارے ہوئے لوگ اب حکومت بنائیں گے۔ محی الدین یاسین کے وزیر اعظم بننے کے بعد مہاتیر محمد تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے سے محروم ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا ٹیکنوکریٹس پر مشتمل حکومت قائم کرنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا ہے۔ 94 سالہ مہاتیر محمد نے گزشتہ ہفتے اپنی اتحادی جماعت کے سربراہ انور ابراہیم سے اختلافات کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بیرسٹاؤ کی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد ملک میں نیا سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ مہاتیر محمد نے اپنے استعفے کے باعث پیدا ہونے والے سیاسی بحران پر عوام سے معافی بھی مانگی تھی۔ انہوں نے ملیشیا کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ مہاتیر محمد نے 29 فروری کو اپنے سیاسی حریف انور ابراہیم کے ساتھ حکومت تشکیل دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہاتھ ملا لیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح محی الدین یاسین کو وزیر اعظم بننے سے روکا جا سکے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ انور ابراہیم کے سیاسی اتحاد پاکستان پارہان الائنس آف ہوپ نے بھی محی الدین یاسین کی قیادت میں تشکیل پانے والی حکومت کو چوروں اور غداروں کی حکومت قرار دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ خبر اسرائیل سے ہے، جہاں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں، پولنگ جاری ہے۔ اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ 1 برس کے عرصے میں یہ تیسری مرتبہ عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات کو وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے لیے ایک آزمائش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جن پر بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ انتخابات سے ایک روز قبل نیتنیاہو نے یہ کہہ کر ماحول کو گرما دیا کہ اگر الیکشن جیتا تو مغربی کنارے کے مزید علاقے اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج کل متوقع ہیں۔ ایک برس کے عرصے میں غیر معمولی طور پر تیسری مرتبہ ہونے والے انتخابات کے لیے صبح سے ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے عوام سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے اہم حریف بینی گینٹز نے بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور عوام سے جمہوریت کے جشن میں شامل ہونے کی خصوصی اپیل کی۔ اسرائیل کے صدر ریولن سمیت متعدد لیڈروں اور حکام نے اپنے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے اس الیکشن کو موجودہ وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے لیے ایک آزمائش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جن پر بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ الیکشن کے 2 ہفتے بعد ہی نیتنیاہو کے خلاف بدعنوانی کے الزامات میں عدالتی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ویسے تو عام انتخابات میں مجموعی طور پر 29 سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، لیکن اصل مقابلہ نیتنیاہو اور بینی گینٹز کے درمیان ہے۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں کے مطابق دونوں امیدواروں میں اس بار بھی کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے۔ ایسی صورت میں ایک مرتبہ پھر انتخابات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گزشتہ دونوں انتخابات میں نیتنیاہو اور ان کے حریف بینی گینٹز اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، جس کے بعد ایک بار پھر اسرائیل کو انتخابات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل میں انتخابات سے ایک روز قبل نیتنیاہو نے اسرائیلی ریاست میں توسیع سے متعلق ایک نیا اعلان کر دیا۔
ان کے بقول وہ اگر پھر وزیر اعظم بنے تو دریائے اردن اور مغربی کنارے کے مزید علاقے فوراً اسرائیل میں شامل کر لیے جائیں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو چلیے اس بلیٹن میں بھی فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔